All right. So up to now we have been discussing and completed section 1 to section 16. So today we will try to find out what we can do with section 17 to 19 or 20, whichever is possible. First of all, you have to understand that up to now there was nothing like adding or subtracting some limitation. It was merely we were dealing with prescribed limit of some limitation as given in the Limitation Act to be understood in some specific circumstances, right? But section 17, 18 and 19 are a little different from what section 1 to 16 have been having in their kitty. Section 17 speaks about a specific scenario which has arisen against the rights of the plaintiff or the applicant, and those are as enumerated. विपिन पढ़ो आगे, बताओ क्या है. Section 17. Effect of fraud or mistake. Clause 1. Where in the case of any suit or application for which a period of limitation is prescribed by this act. Clause A. Subclause A. The suit or application is based upon the fraud of the defendant or respondent or his agent, or clause B. The knowledge of the right of or title on which a suit or application is founded is concealed by the fraud of any such person as aforesaid. Or point C, the suit or application is for relief from the consequences of a mistake. All right. Or wait. First of all, we have to understand that section 17 basically speaks about very special circumstance. What are those special circumstances are? It also gives a specific intention to be seen that whether the limitation would ever have accrued or not. Up to section 16, there was a situation in which we were understanding the law as no doubt the limitation has, the cause of action has arisen, right? But why that person is not approaching to the court, or why he was allowed to approach the court even when the cause of action has already arisen, like in the case of a minor. The things have happened enough for the reason to prosecute its cause, but the person was disabled for one reason or the other, or was unable to approach the court for his grievances. But section 17, 18 and 19 does not think in this manner. They don't even say that there is a cause of action arisen. So the difference between the sections which have already lapsed or which have gone prior to section 16, including section 16, and now is that there is a deemed fiction in favor of the person who is approaching to the court, that he is approaching now because his cause of action has not arisen. And for what reasons? Deemed fiction does not give him a right that he will be deemed to be correct in his pleadings. Merely section 17, 18, 19 goes to an extent that no doubt at this juncture, specifically section 17, speaks so that there is a possibility that the person who is coming or approaching the court in his favor, cause of action has not arisen for the reason. There are basically two things: arisen or arising of a cause of action and the knowledge thereof. In case of legal disabilities, the person may have a knowledge, right? But in section 17, we are dependent on the fact that the knowledge should not be there, meaning thereby, though practically the cause of action would have arisen, but for the knowledge of the plaintiff or the applicant, it has not so arisen. सबसे पहले, first of all, we have to understood that section 17 speaks about three contingencies. One is fraud, second is mistake, third is concealment.
to attract section 17 or to take the benefit of section 17, the person who is approaching the court has to make understand that he was barred or not allowed to approach the court due to these three reasons. There was a fraud played upon him, a mistake has arisen, or there was some concealment, and concealment may be of a fact or a document, right? So it applies to suit, it applies to application, and in all those three conditions. And application herein also includes application or petition for execution of a right when he already has an order or decree in his favor. Because order executable is also a deemed decree. All right. अब उदाहरण कौन देगा मुझे सेक्शन 17 का, इन तीन ग्राउंड्स का, कि भी ऐसी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? कोई एक उदाहरण तीनों चीजों से मिलके बताइए. एनीबॉडी? Assuming, all right, assuming, हाँ बोलो, फटाफट बोलो. सर वो जैसे सेल डीड वगैरह फ्रॉड हो तो वो डिफेंडेंट बताएगी एक्चुअल में इसकी टाइटल ही सही नहीं है, सही टाइटल नहीं है. सर म्यूट है सर आप. तुक्के नहीं, स्पेसिफिक एक एग्जांपल, एक कहानी की तरह एक एग्जांपल बना के बताओ मेरे को. सर सुभाष वाले केस में जो उन्होंने यूज किया, जैसे कि उसके पास में प्रॉपर जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, वो फ्रॉड प्ले कर रहे. नहीं, that's not a fraud. Not to have a title is a different thing, or not to have the documents or title. Here the fraud is related not to the defendant, it is related to the person who is approaching the court. In that our case of Subhas, it was the defendant. पहली तो यही गलती है आपकी. Assuming एक आदमी एक कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि भाई देखो क्या हुआ, मैंने जो है एक कागज किया था एक सनी जी के नाम में, ठीक, मैं तीनों एक ही से कनेक्ट कर दूंगा, और उस कागज में मैंने, अब मेरे पास दो बंगले थे ए और बी, ए बंगला ए बेचा था और बी बंगला नहीं बेचा था, राइट. परंतु ए बंगले के ही मैंने पैसे लिए थे और ए ही बंगले में मैं आराम से रहता था, बी मेरा खाली पड़ा रहता था. ए मैंने बेच के बाहर चला गया, परंतु जब मैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आया तो मुझे पता चला कि भाई सनी जी मेरे घर में रह रहे हैं. मैंने उनसे पूछा कि भाई सनी जी आप कैसे हैं यहाँ, आपको मैं खामखा तो खाली पड़ा था. सनी जी बोले तुमने तो बेचा था मुझे. उन्होंने, मैंने कब बेचा? सनी जी ने मुझे एक सेल डीड दिखाई, राइट. उस सेल डीड को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने जो सेल डीड की थी, और उस सेल डीड में मैंने केवल ए लिखा था और ये लिखा था कि कुछ राइट्स दिए थे. आवाज किसकी म्यूट नहीं है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है. और ये कहा था कि ए को मैं बेच रहा हूं और मैं इतने दिनों तक बाहर रहूंगा, और ऐसी स्थिति में मैंने एक कागज किया था बी के फेवर में कि टेक केयर करता रहे मेरी प्रॉपर्टी को, केवल टेक केयर के लिए. और जो इन बिटवीन लाइंस जो लिखी गई वो मुझे पता नहीं थी, और मैंने कभी भी बी नहीं बेचा. और इसका उदाहरण ये है कि मेरे पास जो पैसा आया है, मेरे पास एक लिखा हुआ कागज सनी जी का रखा है कि जिसमें इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए, और ये भी कहते हैं कि 10 लाख रुपए टोटल कंसीडरेशन जो है प्रॉपर्टी ए के लिए है, और इसके अलावा कभी कोई पैसा जो है मुझे नहीं ट्रांसफर किया गया, राइट. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. लेकिन कीप इट इनटू योर माइंड that it is the plaintiff, because he is coming after the period of limitation has expired with, क्योंकि सेक्शन 17 की जरूरत तो तुझे तभी पड़ेगी ना कि अगर वो विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आ रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सिंप्लिसिटी डिक्लेरेशन है, लिमिटेशन एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं. लेकिन अगर वो पीरियड लिमिटेशन के बाद आ रहा है, राइट, तो सेक्शन 17 का बेनिफिट लेने के लिए उसे पहले फ्रॉड प्रूव करना पड़ेगा. प्राइमरीली फ्रॉड को वो प्रूव करेगा, उसके बाद ओनस शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेंट पे, यानी सनी जी पे हमारे एग्जांपल में, एंड देन इट विल बी द सनी हु विल इन क्लियर टर्म्स प्रूव देन दैट द प्लेंटिफ हु हैज अप्रोच्ड द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड वाज हैविंग द नॉलेज ऑफ द करेक्ट फैक्ट्स.
सब चीजों की सही बात इन्हें पता थी और आज आके ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने दोनों चीजें खरीदी थी, मैंने कोई एक चीज अकेली नहीं खरीदी थी। राइट, गॉट द पॉइंट। नाउ इसके अलावा व्हाट इज द एसेंशियल फैक्ट ऑफ फ्रॉड, हम मिस्टेक की कहानी पे भी आएंगे अभी। द एसेंशियल इज डिसीट, एंड व्हाट इज डिसीट, डिसीट की हिंदी क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? धोखा। नो, पहली बात तो धोखा हिंदी का वर्ड ही नहीं है। उर्दू है। डिसीट मीन्स छल, टू शो समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट और टू शो समथिंग विच इज नॉट एज सच विच इज शोन, जो जैसा है उसको वैसा छुपा लेना या किसी चीज को ऐसा दिखाना जो जैसी नहीं है, उसे छल कहते हैं। तो पहले तो डिसीट होना आवश्यक है, किसी व्यक्ति को डिसीव किया जाना आवश्यक है, उसके साथ वो इंटेंशन भी होना चाहिए कि डिसीट का इंटेंशन भी हो, फ्रॉड की पहली शर्त। अब अगला जो हमारा पार्ट था वो था मिस्टेक, इसी में हमने कहा मिस्टेक। सो कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल कि जब किसी व्यक्ति को गलती से किसी पे कोई अधिकार चला गया हो, उसके लिए सेक्शन 17 के बेनिफिट लेते हुए मुकदमा डाले, कोई उदाहरण? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वो तो होता ही है यार, जब हम प्लीडिंग की बात कर रहे हैं, फैक्ट का हो गया, लॉ का होगा, तो लॉ पे तो हम डिपेंडेंट अभी है नहीं। मिस्टेक का कोई एग्जाम्पल पूछा, जैसे मैंने एक कहानी आपको सुनाई वैसी एक कहानी आप मुझे सुनाइए। Mistake can be like in a similar transaction. I want to sell a property to A. In fact, I want to buy a property. Suppose I want to buy a property from A and I have to pay him 10 lakh. और बस somehow मैंने e-transfer किया, NEFT किया, जो भी किया, एक जीरो एक्स्ट्रा डल गई और ये बस ज्यादा पैसा चला गया। And I'm super rich and I didn't even realize. मुझे बहुत टाइम बाद पता चला। नेग्लिजेंस इज नॉट अ पार्ट। अच्छा, नेग्लिजेंस आपके ऊपर स्विच है, 1 लाख का 10 लाख का अगर रियलाइज नहीं कर गया, आपके पार्ट पे नहीं होनी चाहिए, आपकी ड्यू डिलीजेंस भी आपको शो करनी है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। 1 लाख के 1 करोड़ रुपए कोई बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, ऑल राइट, दिस कैन बी ए ब्लर एग्जाम्पल, सिंपल रखते हैं इसे। एक व्यक्ति ए बी से जो है लगातार ट्रांजेक्शन्स करता था, लगातार ट्रांजेक्शन करता रहता था, उसे उधर से इनवॉइसेस आती थी, इधर से पेमेंट चला जाता था। सामने वाले ने लगातार इनवॉइसेस करता रहा, 4-5 लाख रुपए का बिल था, उसे वो लगातार पे भी करता रहा। राइट, इन बिटवीन उस व्यक्ति ने 50,000 का माल भेजा, इसने 2 लाख रुपए का अपना पेमेंट कर दिया। उसने अपने लेजर चेक किया, इसने लेजर में गड़बड़ी देखी, गलती से देखा कि यार इसके इतने बनते, जबकि उतना पेमेंट हो चुका था। सो हियर इट वाज ए मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक। राइट, उस व्यक्ति ने वो गलती कर दी और वो गलती से वो 3-4 साल तक वो ट्रांजेक्शन चलता रहा, वो 2 लाख रुपए उसने ध्यान नहीं दिए, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता रहा, वो 1.5 लाख रुपए दिखाई नहीं दिए। राइट, इन बिटवीन इन दोनों का ट्रांजेक्शन बंद हो गया। नाउ दैट पर्सन रियलाइजेस हिज मिस्टेक, और सामने वाला जो पर्सन है, क्योंकि द बेसिक बिहाइंड द फैक्टम ऑफ मिस्टेक इज दैट नोबडी इज अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ मिस्टेक वन एंड नोबडी इज अलाउड टू हैव अनड्यू एनरिचमेंट when there is a transaction। उस व्यक्ति बी को पता था, उसने नहीं बताया, या नहीं पता था, हम इस मुद्दे पे नहीं है, this is a fact। so when a person can show that there was a bona fide mistake, right, in some transaction which was not in the knowledge, section 17 की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ cause of action शुरू ही नहीं होता जब तक कि वो आके कोर्ट में कहता नहीं है। और अगर एक, क्योंकि जैसे ही cause of action एक बार शुरू हो गया, फिर तो लिमिटेशन रुकेगी नहीं। So as soon as this fellow will realize that some fraud has been played upon him, or which fellow, that is a plenty for the applicant, or got to know that a mistake has been done, he can come within the same limitation as would have been there in the schedule for an act if no fraud would have been played or no mistake would have been done। ठीक है, अब इसी तरीके से सेक्शन आप पूरा पढ़ लेना। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई विपिन, आर यू हियरिंग मी? यस सर। हाँ,
इस सेक्शन 17 के पैरेलल एक सेक्शन है सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो भी जिस तरीके से लिमिटेशन एक्ट में हम बात करते हैं फ्रॉड की, मिस्टेक की, कोवर्सन की, फ्रॉड, मिस्टेक और कंसीलमेंट की, उसी तरीके से सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मिस्टेक की बात करता है, राइट। जैसे कि क्या हुआ कि एक आदमी ए और बी हैं, उन दोनों को मिलकर सी को 100 रुपए देने थे, 50-50 रुपए की जिम्मेदारी थी, कोई भी दे दे। ए ने 100 रुपए बी को दे दिए, बी लेके बैठ गया, सी लेके बैठ गया। बी को पता नहीं चला कि भाई उसे भी 100 रुपए मिल चुके हैं। वो गया, उसने 100 रुपए का चेक और काटा, 100 रुपए कैश लिया, वो भी दे आया। रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने की थी दोनों की मिलाकर? केवल 100 रुपए की। और सी पे पहुंच कितने गए? 200 रुपए। और ये दोनों लोग आराम से अपने अपने घर जाके बैठ गए, राइट। और ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन था, राइट। अब इसके बाद अचानक वो 4 दिन बाद, 4 साल बाद मिलते हैं एंड दे गेट टू नो, बात होती है आपस में कि भैया वो क्या हुआ, उसका जो पैसे वैसे दे दिए थे तो उससे कोई और बातचीत तो नहीं? उसने कहा अरे हाँ दे दिए, तो उसके 100 रुपए मैंने चेक दिया था। वो कहता तू कब दे आया भाई? द अदर पर्सन सेज दैट आई हैव आल्सो पेड। नाउ दे रियलाइज देयर मिस्टेक, that due to the mistake ₹100 has been given extra to C। तो सेक्शन 72 की जो ये मिस्टेक है उसी पैरेलल फॉर्म पे चलती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और यहां भी वो पैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ सम राइटल, बिकॉज सेक्शन 17 speaks about right title or interest which should have been there or for which a person should have approached the court but didn't due to non arising of the cause of action in lack of knowledge, but a person A approaches the court stating that, जो हमने उदाहरण दिया था कि जो प्रॉपर्टी I have sold only property A to Sunny, not B, but he is in possession of A and B both due to the fraud played upon me by him. He files a suit. Now a person D comes into the picture and says that I have already paid 20 lakh and got a sale deed done in my favor. So section 17 also has an exception in its applicability when there is a bona fide person for consideration. Important thing is there. किसी व्यक्ति को वो अधिकार, जिस अधिकार के बारे में लड़ाई लड़नी है, किसी और को एक्रू हो गया अगेंस्ट कंसीडरेशन, और वो उसे, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द पर्सन हु इज नाउ शोइंग हिमसेल्फ टू बी द परचेजर और द एक्वायरर ऑफ दैट राइट शुड नॉट हैव बीन ए पार्ट ऑफ दैट फ्रॉड। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो ए ने बी को बेचा, बी ने फ्रॉड कर लिया, ए आराम से घर बैठा है सोच के कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ है, मेरे बी से कोई लेना देना नहीं है, या बी तो मुझे उसका किराया तो भेज ही रहा है कि मैंने उसे किराए पे दिया था, वो किराए के नाम पे पैसे भेजता रहा और कब्जा लिए सेल डीड के बेसिस पे, और बाद में ये दिखा के भाई मैं देख इसमें कब्जे में हूं, मेरे पास सेल डीड है, उसने सनी ने आगे जो है विपिन को बेच दी और आगे लकी को बेच दी, राइट। अब लकी जैसी मुकदमा पड़ा, लकी कम्स टू द कोर्ट, कहता भाई ये रही सेल डीड, ये रे पैसे, बोनाफाइड परचेजर हूं, मुझे बाहर क्यों कर रहे हो? So as far as the D is concerned, and if he can show to the court that he was not a privy or party to that fraud or mistake or concealment, right, and he has got it against consideration, then his right will not be flouted upon, उसके अधिकार पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या होगा भाई? फिर कोई बता सकता है? Anybody? So in नहीं, and हाँ क्या हो बताइए। So in that case, suit would not be for the recovery of the property. I'm just guessing, but it will be for damages against B. No, don't guess, because a little relief will be the same if it is proved ultimately। इसी पे हाँ सनी बोलो। सर रिकवरी के साथ साथ कैंसिलेशन भी उसको डॉक्यूमेंट्री करानी पड़ेगी।
अरे भैया वो तो बेसिक है, पहले ही जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो डी की बात, डी का कैंसिलेशन तो हो ही नहीं सकता, 17 से प्रोटेक्टेड नहीं है आप भाई। 17 में स्पेसिफिक उसके कैंसिलेशन के तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो भी फ्रॉड में था। अब ये साबित आ गया, ये एविडेंस आ गई भाई वो फ्रॉड में शामिल नहीं था, उसने तो पैसे देके खरीदी है। सो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 17 नाउ। सर उसका थर्ड पार्टी है, उसका जो क्लेम होगा वो तो कंपनसेशन मांगेगा जिसने उसको कागज करे है। और वो ना चाहे कंपनसेशन, भैया मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मैं पैसे का क्या करूंगा? जब ये पैसे मैंने खरीदी थी 20 लाख की थी, आप तो 1 करोड़ की है। सर जब बेचने वाले के पास टाइटल ही नहीं था तो वो प्रॉपर्टी कैसे किसी को ट्रांसफर कर सकता है? You are absolutely right, but you have also come after the period of limitation. You have been given a right after the limitation arising due to effect of this mistake. Only for that reason your suit is entertainable. Yes. इसीलिए तो आपका सूट सुन रहे हैं, वरना तो पैसे के लिए भी नहीं सुनते। आपका सूट सुन ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता कि बोनाफाइड परचेजर को केवल उन्हें कंपनसेशन ही देना होता तो इसमें लिखने की जरूरत क्या थी? 17 से उसका राइट इफेक्ट नहीं करेगा। कह देते कि इफ एनी बोनाफाइड परचेजर इज देयर देन इन दैट सिनेरियो ही मे बी कंपनसेटेड। लेजिस्लेचर ने ये थोड़ी लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़ के बताओ। Nothing in this section shall enable any suit to be instituted, to be made to recover or enforce any charge against or set aside any transaction effective any property जिन्होंने खरीदी होगी इन 3 केसेस में, if they are bona fide purchaser and they were not part of the fraud. So suit can be not be instituted for relief against those people. So what did it say? So but suit will still be maintainable against the person who has committed the fraud. Absolutely, but what is the benefit? Ultimately, if you cannot seek a relief from the purchaser, and what the relief would be? It would be the possession ultimately to recover the property, and you cannot lie a suit against him. अगर आप एक बी के खिलाफ भी मुकदमा डालोगे और सी बोनाफाइड परचेजर है, सी को बगैर पार्टी बनाए तो आप मुकदमा चला नहीं सकते ना आगे आप, और सी के खिलाफ आप राइट मुकदमा डाल नहीं सकते। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? Ultimate effect will be some relief against B only. C cannot be prosecuted, so there will be some relief against B. This is a very complex issue. You will all research. फाइनल जवाब मैं इसका बाद में दूंगा, पर 3 लाइनें समझने की है इंपॉर्टेंट, उस पर रिसर्च करना। Section 17 is speaking about the effect of fraud and mistake or concealment, but it also protects the right of a bona fide purchaser against consideration, and he has never been a part of fraud, so his right of acquiring that property is not only about protection of money, because if it would have only been the protection of money paid by the bona fide purchaser, it would have been covered by a suit filed by him against the person who has fraudulently sold him. But here the situation is that section 17 specifically bars any suit against him. हाँ सनी कुछ कह रहे थे, बोलो। सर ये कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो हम पढ़ते हैं टीपीए के अंदर वैसा लग रहा है। नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? तो जब एक आदमी के पास राइट नहीं होता बेचने का और वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता बेचने के लिए। नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कहता है जब एक आदमी ए है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बी ने बेच दी, ठीक, सी को बेच दी, अब बी को ये बात पता चल गई या उसने कंसेंट दे दी उसके बाद, या उस पैसे को पकड़ लिया, बी को अथॉरिटी नहीं थी, ए बी सी 3 बैठे हुए थे, ठीक है, मैं बैठा हुआ था, सनी बैठा हुआ था और एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ, मान लीजिए लकी बैठा हुआ था, राइट। बी ने ए के सामने जो रियल मालिक था सी से कहा भाई संपत्ति का मालिक मैं हूं, मैं 20 लाख में बेच रहा हूं, ठीक है, और ए चुप बैठा रहा। उसने 2 लाख रुपए बयाना पकड़ाया, वो उठाकर बी ने ए को पकड़ा दिया, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And that when you were having a right to object, you didn't. So, B ने C को एक डॉक्यूमेंट कर दिया, 20 लाख रुपए ले लिए, अब आपको 10 लाख दिए, क्या दिया वो सेकेंडरी बात है। So, when you have elected some act to have been done by you, जो आपको करना चाहिए था आपकी जगह किसी और ने कर दिया, right?
और आप चुप रहे और उसका कोई बेनिफिट भी ले लिया, या एक व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट किया, उससे राइट एक्रू होना था किसी बी को, और साथ में उसे भी वापस कोई राइट एक्रू होना था, जो कर रहा है उसने राइट तो ले लिया और कह दिया रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मना करने लगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मींस टू इलेक्ट, किसी दो चीजों में से चुनना। यहां चुनने वाली बात ही नहीं, दोनों चीजों को जब एक चीज को छोड़ नहीं सकता, दोनों ही लेनी पड़ेंगी उसको। यस, ये डॉक्ट्रिन ऑफ, this is not only the doctrine of election, this is one part of doctrine of election. So here there is nothing like election. जो व्यक्ति मुकदमा लेके पूछा है उसे तो पता ही नहीं उसके साथ क्या, उसे पता चला फ्रॉड हुआ, वो बी के खिलाफ चला गया, वो कुछ मांगने थोड़ी गया है बी से कि भाई ये दे दे या ये दे दे। He is not electing, he is prosecuting his right, but his right has become barred by limitation, but he has been further given a right to prosecute that particular right only because of the fact of not having the knowledge of that fraud or mistake or concealment. किसी आदमी ए और बी थे, दो भाई थे। अब तीसरा उदाहरण, ए और बी दो भाई हैं, बाप उनका था सी, वो एक वसीयत करके चला गया, ठीक है। वसीयत में उसने करा कि भाई जो दो मेरे बड़े बड़े दो घर हैं, बड़े वाला घर बड़े वाले को मिलेगा, छोटे वाला छोटे वाले को मिलेगा। छोटा वाला चालाक था, उसको वसीयत पता थी, उसने अपनी जेब में रख ली और भाई से बोला भाई देख तेरा तो काम धंधा बढ़िया चल रहा है, सब बातें बढ़िया चल रही हैं, तेरे पे ये भी है, तेरे पे ये भी है, लेकिन मेरा तेरे से रिक्वेस्ट है कि देख मेरा परिवार बड़ा है, तुम मुझे बड़े घर में रहने दे, हमें एक एक घर ही तो बांटना है। बड़े ने कहा चल भाई ऐसे कर ले, घर का बंटवारा तो करना ही है, मेरा 500 गज का सही, तेरा 700 गज का सही। और वो उसने वसीयत छुपा ली, कंसील कर दी। 4 दिन बाद, 4 साल बाद उस व्यक्ति घर की दिवाली दिवली हुई, घर की सफाई हुई, वसीयत निकल आई, बच्चों को खिलते हुए मिल गई, और बाद में उनका व्यवहार बिगड़ गया। अगर आपस में व्यवहार सही हो तो आदमी ऐसे छोड़ देगा अपने भाई के लिए, मान लिया व्यवहार बिगड़ गया, कोई भी रीजन रहा, उसे वसीयत मिल गई, ठीक है, ऑलराइट। अब उस वसीयत का जो राइट उस व्यक्ति को मिलना था, किसको, बड़े भाई को, वो नहीं उसे पता चला कभी। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वहां पर एक फ्रॉड था, कंसीलमेंट था, किसके पार्ट पर, छोटे भाई के पार्ट पर। तो कंसीलमेंट, वैसे तो डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना चाहिए था उसे विदिन 3 इयर्स, अगर कोई राइट लेना था, या प्रोबेट के लिए भी वही मान के चलते हैं, वो नहीं गया, 4 साल बीत चुके। लेकिन अब चूंकि उसे पता चला कि उसके नाम में एक वसीयत एग्जिस्ट करती थी, तो वो आ गया अपना। दिस इज, हाँ विपिन बोलो। एक क्वेश्चन आया उसमें, अगर इन बिटवीन वो उससे ये मतलब रिटर्न में करवा ले कि भाई मैं ये वाला घर ले रहा हूँ, तो ये रिटर्न में मेरे नाम पे कर दो, या आप कह दो कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या वो हेल्प करेगा उसे? नो, व्हेन फ्रॉम द इनिशियल point of time or inception there was a fraud, nothing coming in between the fraud and the right will frustrate the right itself, ठीक है। लेकिन अगर वही आदमी पैसे लेके उसे फालतू पैसे ले ले कुछ उससे कि भाई तेरा बड़ा घर है, मेरा छोटा घर है, मैं बड़े वाले ले लेता हूं, और इसके बाकी के हिस्से का जो पैसा बनता है वो तू मेरे से कैश ले ले, ठीक। अब वो व्यक्ति बोनाफाइड परचेजर भी हो गया, पहले वाला बोनाफाइड परचेजर नहीं हुआ, जो ए था वो तो कंसीलमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बोनाफाइड परचेजर वो भी नहीं है। लेकिन जब कभी अगर कोई बी व्यक्ति जाएगा उस स्थिति में, फिर इक्विटी की बात करते हैं हम, लंबा डिस्कशन हो जाएगा, वी विल नॉट गो ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि हमारी पहली मीटिंग विल गेट एक्सटेंडेड ओनली फॉर 5-6 मिनट्स मोर, एक सेक्शन है पूरा हमारा 40 मिनट का मीटिंग चला गया। So in brief what we have to understand that section 17 speaks about suit and application as well. Application includes execution. Number 1, it applies to 3 conditions: when a fraud has been played, a mistake is there, or a concealment is there, and the person who approaches the court has to prove that a played primarily the onus is on the plaintiff that there was a fraud, mistake or concealment. And but the section 17 will not give the right to the plaintiff to have a charge against a person who is a bona fide purchaser against consideration, bona fide transferee. इसमें लेकिन ये शामिल नहीं है कि एक आदमी ए था, बी को किया या नहीं किया, बी ने एक फ्रॉड करके ए से ले ली थी कोई चीज, और बाद में बी ने गिफ्ट कर दिया किसी को,
बिल्कुल दिमाग में रखना। स्पेसिफिकली केवल और केवल सेक्शन 17 से कंसीडरेशन वर्ड करके यूज उन्होंने किया है, ताकि क्यों होगा, गिफ्ट तो वो किसी अपने जानवर को भी कर सकता है, उसे बताते भी आधा आधा बांट लेंगे बाद में चोरी से। इसीलिए उन्होंने कहा कि बोनाफाइड परचेजर होना जरूरी है और अगेंस्ट कंसीडरेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल को कम से कम उतने लेवल तक जो पैसा उसे मार्केट वैल्यू का मिला, बोनाफाइड परचेजर तो मार्केट वैल्यू देगा ना कम से कम, वो उतने पैसे तक वो व्यक्ति प्रोटेक्ट हो जाए जो मुकदमा फाइल कर रहा है। राइट? गॉट द पॉइंट? राइट। Sending you invite in 2 minutes again. Go through by section 17 till then. And the most important thing is that while you are making notes or reading about section 17, you all should also go through by section 72 of the Indian Contract Act. Right? Okay.